everyone. I hope सारे ठीक ठाक ने. I'm really sorry for joining so late these days. I was latent lately, but it doesn't takes away the motive with which we had started the series. So we are back at it, and I felt that the best thing would be to start again with the adjective series. So I was caught up in something, so due to which I couldn't post so frequently, but everyone who was missing these series, it made me feel very good. Everyone was there around me to say to restart these series soon. So sorry for the delays, but not taking much time. I think we should dive straight into the objectives of our video. So in the past videos we had discussed about the different types of adjectives, and now this was the pending exercise that we had to do, that is to identify the adjectives. So if you want to learn about the different type of adjectives, the kind of adjectives, we have covered that in the very previous videos, so you can have a look on them. Playlist खोल लो grammar की, and you will get the all the videos on the type of adjectives. So today we are going to start with this exercise, that is basically to identify the type of adjectives. So we will have some questions, and let's see that what type of adjectives we are looking over here. So the first one, it is what are those children doing? So this is the question, that what are those children doing? So in this one, first of all, you know, the question says the type of adjectives we have to find in this sentence. So already I have, highlighted the words or the adjectives, and we have to just identify the kind of adjective. So the first one, it is what. So we know that what, or these kind of words, what, where, how, all these words which predict some kind of question, जिसमें कि question पूछा जाए, which are of the nature of asking a question, they all fall into the category of interrogative. ठीक है? Interrogative. So this is your interrogative adjective. Whereas those, हमने ये किया था कि whenever you have to pinpoint specifically something which is far away from you, मतलब कि अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना है जो कि आपसे दूर है, like that car, ठीक है, those boys, ठीक है, for all these kind of words which specify, required to specify something which is far away from you, so those kind of words or adjectives are known as demonstrative adjectives. So those is demonstrative adjective. I hope जिनको नहीं याद है, they can look back to the videos, and it will आपको बहुत clarity मिल जाएगी. Okay. Now, next it is my best friend is always happy and helpful. So now here the words, I think the best, it was highlighted by mistake, but here the words happy and helpful, I think they are the words which are very clearly describing about your best friend. So I think best can also fall under the category of quality adjective only. So कोई भी चीज, कोई भी words जो किसी person, place या thing की quality के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज कैसी है, how it is, that is called quality adjective. Then it is my house is very big. So here there are two types of different adjectives. So my house, so it is showing some kind of ownership of the house, that it is telling us that that house is yours. So here it is going to be possessive adjective. That is basically it is telling us about the possession. Whereas the word big over here, it is again telling us about the quality of the house. That is, the house is very big. Again, next question here, the next sentence, it is some children are playing. So again here, some word, it is indicating about the quantity. We do not know the exact number, that how many children are playing. So here, this adjective, it is adjective of quantity. Whereas the next we have it is she has three cute puppies. So here we can see that clearly there are again two different type of adjectives. First one, it is three, that is a number it is being given. So straight away this is the adjective of number. Whereas cute, it is again telling us about the quality of the puppies. So it is going to be a quality adjective. Okay, so now let's just move on to the next part. So I hope it is a bit clear now about the different type of adjectives through this exercise. Okay. So now we are moving on to the next part
of the adjectives, which is also known as the forms of adjectives or the degrees of comparison, which forms a really, really, really important part as well. So basically, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब हम कि दो चीजों को कंपेयर करते हैं। अब हमें इतनी चीज पता है कि कंपैरिजन एक बंदे में तो कभी नहीं होता। कंपैरिजन हमेशा एटलीस्ट इट हैज टू अकर बिटवीन टू पीपल। सो लाइक वन इज, आप एक स्टैंडर्ड रखते हो फिर उससे कंपेयर करते हो। सो लाइक जैसे आपको बहुत ताने मिलते हो कि आपकी फैमिली में भी बहुत कैजुअली योर पेरेंट्स से दैट योर फ्रेंड इज स्कोरिंग बेटर और राम इज डूइंग वेरी गुड, ओके, और लाइक राम इज बेटर देन यू, और यू कैन से like words like this. It could be in any kind of form, like he is a better player than, we can say Rahul is a better player than Ram. So these kind of sentences, यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो बंदों को कंपेयर किया जा रहा है, जहां पे हमें ये पता लगता है कि एक बंदा दूसरे से बेटर है। सो दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। नाउ फॉर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन क्या ना करें, डिफरेंट फॉर्म्स दो बंदों के बीच में हो सकता है, या फिर अगर सपोज एक पूरी क्लास है, एक पूरी 30 स्टूडेंट्स की क्लास में अगर कोई एक बच्चा जिसने टॉप किया है, ठीक है, सो उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी बच्चों से, सो that is how we get to know that there are different degrees of comparison. So that is what we are going to learn over here. So the first one, that is your positive degree of comparison. So जो positive degree of comparison होती है, it is the form of the adjective that is used in the original form. Like इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली एक चीज की बात हो रही है और उसी के बारे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया गया है, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब ये जो वर्ड है इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, हमें इससे ये पता लग रहा है कि जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, जो भी बुक है जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन की बात नहीं है, ठीक है। Now let's move on to the next part. Now comes the comparative degree of comparison, मतलब कि जहां पे आप बेसिकली अब जहां पे हम कंपेयर करेंगे चीजों को, ठीक है। सो है द comparative form of adjective, it is used when two subjects। अब यहाँ पे आ गए ना two subjects, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि when two, you can say two objects ले लो, it could be two people, it could be anything. So when two subjects performing the same action or possessing the same quality are compared। अब ये नहीं है कि कोई एक बच्चा मतलब कि एक बच्चे को हम he or she is good in studying, और हम उसे ऐसे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं जो कि स्टडीज में अच्छा नहीं है बट वो he is very good in sports। So for comparison also it is very important to note down, that is, लेट मी जस्ट इसकी थोड़ा सा कम करूं, कि अगर आप कंपैरिजन भी करते हो तो आपकी जो क्वालिटीज हैं जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, द क्वालिटीज शुड बी सेम। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सब सपोज ये सब्जेक्ट वन है और सब्जेक्ट टू है, मतलब कि हमने दो बंदों की बात की है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वन जो है, ही और शी इज गुड इन स्टडी, बट जो सब्जेक्ट टू है वो स्टडी में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, उल्टा कि वो गेम्स में अच्छा है। सो हम यहाँ पे इन दोनों को ऐसे फालतू में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडीज तो हम सिर्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस on other aspect. So it is very important, that is what it is being said, कि सिर्फ एक सेम एक्शन के ऊपर ही हम दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गेम्स तो हम गेम्स के सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों का गेम्स कंपेयर करेंगे। अगर हम स्टडी कंपेयर करें तो दोनों की स्टडी ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि एक बच्चे की स्टडी कंपेयर की और दूसरे की गेम्स कर रहे हैं, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक the book I read yesterday was more interesting than the one I read today read today, sorry। So अब यहाँ पे बेसिकली जो पहला हमने सेंटेंस किया था, दैट इज द बुक दैट आई एम रीडिंग इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ने एक और बुक पढ़ी, ठीक है, उसने कल कोई और बुक पढ़ी थी, आज उसने कोई और बुक पढ़ी है, और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बुक उसने आज पढ़ी है वो कल वाली बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड मोर इंटरेस्टिंग देन। तो अब यहाँ पे वर्ड्स मोर और देन हमें बता रहे हैं कि कंपैरिजन हुआ है दो चीजों के बीच
में. So these kind of words is what we have to look for comparison. Now next it is the superlative degree of comparison. मतलब कि जब कोई चीज सबसे बेस्ट है, ठीक है, out of the rest, that is where the superlative degree of comparison comes. अब यहाँ पे देखो, simply the superlative degree of comparison is used when comparing the same quality of two or more subjects. यहाँ पे सिर्फ दो की बात नहीं हो रही, it could be two or more, and to represent that a subject is superior to two or more subjects. So basically जब कोई चीज बाकी सब चीजों से सबसे बेस्ट हो, ठीक है, so that is when superlative degree of comparison is used. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है इसने, this fantasy novel is the most interesting book that I have ever read. So यहाँ पे वर्ड आपका आ गया है most. तो जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाए, most, best, ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स दे डिपिक्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मतलब कि जब आप किसी चीज, जब कोई बेस्ट चीज के बारे में आपको बात करना हो, ठीक है, जब आप दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं, सो दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मोर और देन. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन टू सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव्स, कि हमें कैसे पता लगता है जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं. So the first one that is we are saying here, it is the comparative. For the word, like first one here we have, it is the word that is tall. So अगर हम दो बंदों के बीच में कोई बात कंपेयर कर रहे हैं, सपोज इफ आई हैव टू से दैट राम इज टॉलर देन रमेश, सो टॉल का वर्ड आ जाएगा टॉलर, ठीक है, शॉर्ट का शॉर्टर, राम इज शॉर्टर देन रमेश. नाइस, नाइसर. मीन्स यहाँ पे कंपैरेटिव में वी आर कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स. यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा हमें याद रखना है दो सब्जेक्ट के बीच में होती है. इट इज नेवर बिटवीन एनी वन, ठीक है. सो हॉट का हॉटर, फनी का फनीयर, एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव. सो देर आर सम वर्ड्स जिसके आगे आप मोर का यूज करते हो. सो कंपैरेटिव में हमेशा मोर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, वेयर एज इन सुपरलेटिव मोस्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है. सो एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे हमेशा इंटरेस्टिंग में खराब होते हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिएस्ट बना देते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स बना देते हैं विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. इंटरेस्टिंग का हमेशा मोर इंटरेस्टिंग होता है. नाउ कम्स दी सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मतलब आप दो तीन दस बंदों की बात कर रहे हो, हजार बंदों की बात कर रहे हो, एंड वी हैव टू टेल कि कोई चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो then we use the superlative form of adjective of comparison. So यहाँ पे the tallest. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे comparative में words के पीछे er लगता है, tall का taller, shorter, nicer, bigger, hotter, funnier. But यहाँ पे est लगता है, the tallest, ठीक है. द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द नाइसेस्ट, द बिगेस्ट, द हॉटेस्ट, द फनीएस्ट. अगेन एक्सपेंसिव का द मोस्ट एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग का द मोस्ट एक्सपेंस इंटरेस्टिंग. नाउ देयर आर सम इरेगुलर्स. इरेगुलर्स मतलब कि इनके वर्ड्स चेंज होते हैं इन दी सुपरलेटिव फॉर्म्स, ठीक है. सुपरलेटिव और कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इन वर्ड्स की फॉर्म, जो बेसिक फॉर्म है, वो चेंज हो जाती है. अब जैसे यहाँ पे गुड, इट इज द बेसिक फॉर्म, ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम किसी भी चीज से कंपैरिजन नहीं करें, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग. सो सपोज राम इज गुड, ठीक है, ये बेसिक है. नाउ आई हैव टू टेल कि राम इज बेटर, सो राम इज बेटर देन रमेश, ठीक है. सो दिस इज योर कंपैरिजन, COMP फॉर कंपैरिजन. नाउ आई हैव टू टेल दैट राम इज द बेस्ट इन द क्लास, सो दिस वन इज योर सुपरलेटिव. बट अगर हम इन तीनों चीजों में नोट करें कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए, गुड का बेटर बन गया, बेटर का दी बेस्ट बना, ठीक है. सो द सेम वे बैड. अब जो बैड वर्ड है, बैड का बनता है वर्स और वर्स का बनता है दी वर्स्ट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, इसको हम इरेगुलर्स बोलते हैं. इरेगुलर्स मतलब कि इनकी फॉर्म्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंदर इनके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. मैनी का मोर, दी मोस्ट, मच, मोर, दी मोस्ट, फार, फादर, दी फादेस्ट, ठीक है. फर्दर का दी फर्देस्ट, मतलब फार का फर्दर और फर्देस्ट होता है, और फार का फर्दर और द फर्देस्ट भी आता है, ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर, दैट इज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इट इज क्लियर. इसमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यू विल जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस एंड यू विल बी गुड विद इट, ठीक है. इसको हम
वन मोर थिंग टू नोट इज, कई बारी हम V1 V2 या V3 भी बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें V1 आपकी आती है द सिंपल फॉर्म, ठीक है। सिंपल, और वी कैन से द पॉजिटिव वन, दैट इज जिसके अंदर आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो। वेर एज V2 इट इज द कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, जिसमें आप वर्ड मोर का यूज करते हो, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव। V3 इट इज सुपरलेटिव, जब आप किसी वर्ड, जब आपको बेस्ट किसी चीज जो सबसे बेस्ट है आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वो बताना है, तो वहां पे V3। सो V1 V2 V3 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो इट इज almost the same. Now let's move on to the next one. I think it is going to be some exercise. Okay, so now just to test your knowledge so far, we are going to do this exercise and it's going to help you a lot. So now let's just do it. Chaliye, let's do this color only. Let it be. Okay, so we have to complete the sentences with the correct form of the adjectives in the parenthesis, मतलब जो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। सो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वो हमें देखना है कि कैसे। नाउ दिस बुक इज डैश देन दैट वन। अब यहाँ पे वर्ड देन आ गया, मतलब कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स की बात हुई है, और हमें पता है कि जहां पे भी दो सब्जेक्ट्स की बात होती है वहां पे कंपैरिजन आता है, मतलब कि V2। सो यहाँ पे वी विल राइट दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, वर्ड है इंटरेस्टिंग का V2 बनेगा मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सारा इज द डैश स्टूडेंट इन अ क्लास। अब यहाँ पे हमें एक बंदे की बात की गई है, हमें ये बताना है कि सारा जो है वो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है हमारी क्लास की। सो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा, दैट इज वी विल यूज सारा इज द स्मार्टेस्ट। Okay, so now let's move on to the next one. So नाउ माई कार इज डैश देन योर्स। अब यहाँ पे अगेन दो कार्स की बात हो रही है, मतलब दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। सो सिंपली देन वर्ड जहां आ जाए इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इट इज V2 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा फास्ट का, दैट इज माई कार इज फास्टर, ठीक है। माई कार इज फास्टर देन योर्स। माउंट किलिमंजारो इज वन ऑफ द डैश माउंटेन्स इन अफ्रीका। सो यहाँ पे बेसिकली we are talking about that, we are telling that something is the we can say highest mountains in Africa. So यहाँ पे V3 form of adjective use होगा, मतलब हमें बताना है कि ये सबसे ज्यादा high है। So we will use Mount Kilimanjaro is one of the highest, that is V3. Now the next one, it is this test is dash then the last one, again than word है, मतलब two subjects की बात हुई है। So this test is easier, this test is easier than the last one. I hope it is a bit clear now with the type of degrees of comparisons of adjectives. So इससे काफी clarity हुई होगी। You can just go through it through the adjectives part also and through these degrees of comparison also, and I hope we can see carry forward कि हम next video में इसी के related कुछ exercises I will try to bring it up. So till then keep learning and I'll see you in the next videos. Bye bye, take care.